Hello students, welcome all of you in my YouTube channel English Club with a new video of a new topic, the poem The Express by Stephen Spender, a famous novelist, thinker and a poet of England. This video is important for your competitive exam, so concern yourself to study one by one point and important facts with analysis respectively. Now let us start. Stephen Harold Spender. Stephen Spender, full name was Stephen Harold Spender, was born on 28 February 1909 and died on 16 July 1995 in London, England. स्टीफन हैरोल्ड स्पेंडर का जन्म 28 फरवरी 1909 को हुआ था और 16 जुलाई 1995 को लंदन, इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हुई थी. He was an English poet, novelist, critic, and essayist whose work concentrated on themes of social injustice and the class struggle. वह एक अंग्रेजी कवि, उपन्यासकार, आलोचक और निबंधकार थे. उनका काम सामाजिक अन्याय और वर्ग संघर्ष के विषयों पर केंद्रित था. He was appointed U.S. Poet Laureate, consultant in poetry to the Library of Congress in 1965. उन्हें 1965 में कांग्रेस के पुस्तकालय में कविता में यूएस कवि पुरस्कार विजेता सलाहकार नियुक्त किया गया. स्पेंडर was part of the generation of poets known as the 30s poets, which included W.H. Auden and C. D. Lewis. स्पेंडर 30 के दशक के कवियों में मुख्य रूप में जाने जाने वाले कवियों की पीढ़ी का हिस्सा बन गए थे, जिसमें W.H. Auden और C. D. Lewis मुख्य थे. He attended University College, Oxford, was deeply influenced by the literary and intellectual circles of his time. उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की और अपने समय के साहित्यिक और बौद्धिक हलकों से बहुत प्रभावित थे. Spender began his work on a novel in 1929, which was not published until 1988 under the title The Temple. स्पेंडर ने 1929 में एक उपन्यास का काम शुरू कर दिया था जो 1988 तक प्रकाशित तो नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था द टेम्पल. दिस पार्टली ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इज अबाउट ए यंग मैन हु ट्रेवल्स टू Germany and finds a culture at once more open than England's, particularly about relationship between men, and shows frightening harbingers of Nazism that are confusingly related to the very openness the man desires. यह आंशिक रूप से आत्मकथात्मक उपन्यास है, एक ऐसे युवक के बारे में जो जर्मनी की यात्रा करता है और एक ऐसी संस्कृति पाता है जो इंग्लैंड की तुलना में कहीं अधिक खुली है, विशेष रूप से पुरुषों के बीच संबंधों के बारे में, और नाजीवाद के भयावह अग्रदूतों को दिखाता है जो उस खुलेपन से भ्रामक रूप से संबंधित है जिसकी वह प्रशंसा करता है. Throughout his life, Spender was actively involved in political and social causes, particularly during the Spanish Civil War and World War II. अपने पूरे जीवन में स्पेंडर ने राजनीतिक और सामाजिक कारणों से सक्रिय रूप से जोड़ करके रखा था, विशेष रूप से स्पेनिश गृह युद्ध में और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भी उन्होंने अपने आप को रखा था. He served as a firefighter during the London Blitz and worked as a cultural ambassador for the British Council. उन्होंने लंदन में ब्लिट्ज के दौरान एक फायर फाइटर के रूप में भी काम किया और ब्रिटिश काउंसिल के लिए एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में काम किया. As a poet, Spender works often explored themes of love, alienation and social justice. एक कवि के रूप में स्पेंडर के कामों में अक्सर प्रेम, लगाव या अलगाव, यहाँ पर एलिनेशन मीन्स परकीकरण, सामाजिक न्याय के विषयों की खोज की जाती है. His poetry was marked by its clarity, emotional depth and empathy for the human condition. उनकी कविता में स्पष्टता, भावात्मक गहराई और मानवीय स्थिति के प्रति सहानुभूति थी. Aside from his poetic achievements, Spender was also a successful editor and translator. अपनी काव्य उपलब्धियों के अलावा स्पेंडर एक सफल संपादक और अनुवादक भी थे. He received numerous accolades during his lifetime. Accolade में सराहना या पुरस्कार या शाबाशी होता है. And his literary contribution continue to be celebrated and appreciated long after his death on July 16, 1995.
उन्हें अपने जीवन काल में कई पुरस्कार मिले और 16 जुलाई 1995 को उनकी मृत्यु के बाद भी उनके साहित्यिक योगदान की सराहना की जाती है। स्पेंडर was discovered by T.S. Eliot and editor at Faber and Faber in 1933। 1933 में फेबर एंड फेबर के संपादक टी.एस. एलियट ने स्पेंडर की खोज की थी। स्पेंडर का नाम अपने फेबर एंड फेबर जब वो लिख रहे थे, ये एक पत्रिका का नाम था जो टी.एस. एलियट ने 1933 में स्टार्ट किया था, तो उसी में उन्होंने एडमंड स्पेंसर की भूमिका के लिए बताया था। और स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर की भूमिका को उन्होंने अपनी इसमें फेबर एंड फेबर में जोड़ा था। हिज अर्ली पोट्री नोटेबल पोएम्स, उनकी आरंभिक जो पोट्री थी 1933 वाज ऑफन इंस्पायर्ड बाय सोशल प्रोटेस्ट। उनकी शुरुआती वाली जो कविताएं थीं वो खासतौर पर पोएम्स 1933 वाली जो थीं अक्सर सामाजिक विरोध से प्रेरित थीं। इन 1936 स्पेंडर became a member of the कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। 1936 में स्पेंडर ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए, मेंबर बन गए थे। स्पेंडर वाज अवार्डेड द गोल्डन पेन अवार्ड इन 1995। स्पेंडर ने 1995 में गोल्डन पेन अवार्ड जीता था, उन्हें सम्मानित किया गया था। स्पेंडर्स न्यूमरस बुक्स ऑफ पोइट्री इंक्लूड डॉल्फिन्स 1994, कलेक्टेड पोएम्स 1929 to 1985, द जनरस डे 1971, पोएम्स ऑफ डेडिकेशन 1946 एंड द स्टील सेंटर 1933। इनके कई पोएटिक संग्रह हैं जो डॉल्फिन 1994 में, कलेक्टेड पोएम्स 1928 से 1985 में खत्म कर पाए थे, ये लिख पाए थे, कंप्लीट कर पाए थे। द जनरल डेज 1971, पोएम्स ऑफ डेडिकेशन 1946 में, और द स्टील सेंटर के नाम से 1939 में लिखा था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्पेंडर वर्कड फॉर द लंडन Fire Service from 1965 to 1966. He served as the consultant in poetry to the Library of Congress. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्पेंडर ने लंदन अग्निशमन सेवा के लिए काम किया था, मीन्स फायर सर्विस के नाम पर काम किया था। 1965 से 1966 तक उन्होंने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में कविता के सलाहकार के रूप में भी काम किया। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश at University College London from 1970 to 1977 and he frequently gave lectures at universities in the United States. वे 1970 से 1977 तक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और वे अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिया करते थे। He was knighted in 1983. उन्हें 1983 में नाइट की उपाधि भी दी गई थी। Spender's name was most frequently associated with that of W.H. Auden, the most famous poet of the 1930s. स्पेंडर का नाम सबसे ज़्यादा 1930 के दशक के सबसे मशहूर कवि W.H. Auden के साथ में जोड़ा जाता है। इनका नाम W.H. Auden के साथ में लिया जाता है। Here are some important express. Now we are going to study of a poem, The Express. The poem Express portrays the exhilarating and powerful journey of a train, highlighting its grace, speed, and the emotions it evokes as it travels through different landscape and creates a symphony of motion. कविता एक्सप्रेस, दी एक्सप्रेस के नाम से इन्होंने लिखा है, तो यहाँ पर दी भी हो जाएगा। कविता एक्सप्रेस जो एक ट्रेन की रोमांचक और शक्तिशाली यात्रा को दर्शाती है, जो इसकी सुंदरता, गति और भावनाओं को उजागर करती है, क्योंकि यह विभिन्न प्रदेशों से होकर यात्रा करती है और गति की एक सिम्फनी बनाती है। सिम्फनी मीन्स आवाज़ की समता या समरता या सिमिलैरिटी, साउंड सिमिलैरिटी भी होती है, या स्वर की क्षमता। दिस पोएम वाज रिटन बाय इन 1936। ये पोएम 1936 में लिखी गई। स्टीफन स्पेंडर द एक्सप्रेस इज ए कैप्टिवेटिंग पोएम दैट सेलिब्रेट्स द awe-inspiring power and beauty of a train journey. स्टीफन स्पेंडर की द एक्सप्रेस एक आकर्षित कविता है जो एक ट्रेन यात्रा की विस्मयकारी शक्ति और सुंदरता का जश्न मनाती है। थ्रू विविड इमेजरी एंड रिदमिक लैंग्वेज, स्पेंडर टेक्स द रीडर ऑन ए thrilling ride aboard the express train, capturing an essence of its speed, majesty and vitality. विशद कल्पना और लयबद्ध भाषा के माध्यम से स्पेंडर पाठक को एक्सप्रेस ट्रेन में एक रोमांचक सवारी पर ले जाता है जो इसकी गति, भव्यता और जीवंतता का सार पकड़ता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग
Spender sets the stage with a powerful plain manifesto painting a picture of the train's departure from the station with understated elegance and grace. शुरुआत से ही स्पेंडर ने शक्तिशाली सादे पत्र घोषणा पत्र के रूप में इसको नाम दिया है के साथ मंच तैयार किया जिसमें स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान की तस्वीर को संयमित लालित्य और अनुग्रह के साथ चित्रित किया जाता है. द ट्रेन इज पर्सोनिफाइड एज ए रेगल फिगर ग्लाइडिंग लाइक ए क्वीन exuding confidence and poise as it navigates its way through the urban landscape. ट्रेन को एक राजसी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है जो रानी की तरह एक ग्लाइड बना करके चलती है, शहरी परिदृश्य के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए आत्मविश्वास और संतुलन भी दिखाती है. As the train leaves the confines of the town behind, it enters the open countryside where it gains momentum and acquires an aura of mystery. As the train leaves, जैसे ही ट्रेन शहर की सीमाओं को पीछे छोड़ती है वह खुले ग्रामीण इलाकों में प्रवेश करती है जहां यह गति प्राप्त करती है और रहस्य की आभा प्राप्त भी करती है. Spender's use of metaphor compares the train to a ship on a ocean, emphasizing its self-possession and grandeur as it hurtled forward with increasing speed. बहुत अच्छी बात कही है. स्पेंडर के रूप का उपयोग ट्रेन की तुलना समुद्र में एक जहाज से करता, समुद्री जहाज से ट्रेन की तुलना कर देता है जो बढ़ती गति के साथ आगे बढ़ने पर अपने आत्मनियंत्रण और भव्यता पर भी जोर देता है. The poem crescendos with the train's song, symbolized by the piercing whistle and the cacophony of sounds associated with its journey, tunnels, brakes, bolts, all contributing to the symphony of movements express progress. The poem crescendos with the train's song symbolized by the piercing whistle and cacophony sounds associated with its journey, tunnels, brakes, bolts, all contributing to the symphony of movements and progress. ये जो पोएम है ट्रेन के गीत के साथ आगे बढ़ती है जिसकी प्रतीक तीखी सीटी और इसकी यात्रा से जुड़ी ध्वनियों की कर्कशता है. सुरंगें, ब्रेक बोल्ट, टनल्स में सुरंगें, ब्रेक बोल्ट एंड और उसके साथ साथ सभी गति और प्रगति आगे बढ़ने की सरसता के साथ में योगदान भी देते हैं. The imagery of the train's elate meter of her wheels underscores its relentless energy and unstoppable momentum. ट्रेन के पहियों के उत्साहपूर्ण मीटर की कल्पना इसकी अथक ऊर्जा और अजेय गति को रेखांकित करती है. As the train speeds through the metal landscape of railway lines, it symbolized progress and advancement, ushering in new eras of wild happiness with its accelerating pace. मीन्स बताया जैसे जैसे ट्रेन रेलवे लाइनों के धातु प्रदर्शन से गुजरती है यह प्रगति और उन्नति का प्रतीक है जो अपनी उत्साहपूर्ण गति के साथ जंगली खुशी के नए युग की शुरुआत करती है. एक्सेलरेटिंग मीन्स खुशी का इजहार करना. स्पेंडर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन्स ट्रेजेक्टरी evokes a sense of awe and wonder as it traverses vast distances and transcends the boundaries of time and space. ट्रेन के प्रक्षेप पथ के बारे में जो एरिया है स्पेंडर का वर्णन विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करता है क्योंकि यह विशाल दूरी तय करती है और समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है. इन द पोएम्स फाइनल लाइन्स द ट्रेन इज लाइकेंड टू ए कोमेट. कोमेट मीन्स होता है धूमकेतु, streaking through the night sky, leaving behind a trail of light and brilliance. ट्रेल मीन्स पीछे हटना. तो बताया गया है कि कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं इसमें ट्रेन की तुलना रात के आकाश में चमकते हुए एक धूमकेतु से की गई है जो अपने पीछे प्रकाश और चमक को निशान के रूप में छोड़ता रहता है. दिस इमेज encapsulated and the train's transformative power, its ability to captivate and inspire as it races onward into the unknown. यह कवि की द्वारा लिखी गई कविता में ये जो छवि ट्रेन की परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में लिया गया है अज्ञात में आगे बढ़ते हुए मोहित करने वाले और प्रेरित करने की क्षमता को दर्शाती है. द एक्सप्रेस इज ए मास्टरफुल पोर्ट्रेयल ऑफ द ब्यूटी एंड डायनामिज्म ऑफ modern transportation, celebrating the timeless allure of speed and movement.
दी एक्सप्रेस पोएम आधुनिक परिवहन की सुंदरता और गतिशीलता का एक उत्कृष्ट चित्रण है जो गति और आंदोलन के कालातीत आकर्षण का जश्न मनाता है। स्पेंडर्स evocative language and a keen observation make this poem a thrilling exploration of the human spirit, quest for progress and adventure. evocative मीन्स भावपूर्ण, तो स्पेंडर की भावपूर्ण भाषा और गहन अवलोकन इस कविता को प्रगति और रोमांच के लिए मानव आत्मा की खोज का एक रोमांचक अन्वेषण बनाते हैं। स्टीफन स्पेंडर्स पोएम द एक्सप्रेस एम्प्लॉयज free verse with traces of iambic pentameter and minimal rhyme, enhancing its thematic focus on the dynamic power of locomotive. स्टीफन स्पेंडर की कविता दी एक्सप्रेस में आयम्बिक पेंटामीटर और न्यूनतम तुकबंदी के साथ मिनिमल राइम के साथ मुक्त छंद यानी कि फ्री वर्स का भी प्रयोग किया है और मुक्त छंद के साथ साथ लोकोमोटिव की गतिशील शक्ति पर इसके विषयगत फोकस को बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेंडर यूजेस पोएटिक डिवाइसेस सच एज पर्सोनिफिकेशन, कंपेयरिंग द ट्रेन टू ए क्वीन एंड इन्फ्यूजिंग इट विद लाइफ लाइक क्वालिटीज। स्पेंडर काव्यात्मक उपकरणों का उपयोग करता है जैसे कि मानवीकरण ट्रेन की तुलना करके रानी से करता है और एक रानी के रूप में कई उसमें जीवन जैसी विशेषताओं को भी भरता है। Metaphors and similes further enrich the imagery, likening the train's trajectory to violet paths or its vibrant energy to a comet. रूपक और उपमाएं कल्पना को और समुद्र के रूप में समृद्ध करती हैं। ट्रेन के प्रक्षेप पथ को बुलेट पथ या इसकी जीवंत ऊर्जा को धूमकेतु से की जाती है। The poem juxtaposes the vitality of the moving train with static elements like symmetries, highlighting its force and majesty. मीन्स बताया है कविता चलती हुई ट्रेन की जीवन शक्ति को कब्रिस्तान जैसे स्थिर तत्वों के साथ में जोड़ती है। सिमेट्रीज मीन्स कब्रिस्तान जैसे तत्वों को जोड़ती है और इसके बल और रहस्य को उजागर भी करती है। हाईलाइटिंग इट्स फोर्स एंड मैजेस्टी। द एक्सप्रेस बाय स्टीफन स्पेंडर इज ए सेमी-मीटर फ्री वर्स poem of 27 lines. कितनी लाइन्स हैं? 27 lines with a presence of iambic in lines that can be scanned according to pentameter. स्टीफन स्पेंडर द्वारा रचित द एक्सप्रेस 27 पंक्तियों की एक अर्थ मीटर मुक्त छंद वाली कविता है जिसमें पंक्तियों में आयम्बिक की उपस्थित है जिसमें पेंटामीटर के अनुसार स्कैन किया जा सकता है। आयम्बिक मीन्स ए पेयर और ए फुट मीन्स यहाँ पर स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल्स, मतलब दो मात्राओं का एक जोड़ा होता है जो फुट के नाम से बोला जाता है, और या फिर बोल दीजिए पेयर, तो दो मात्राएं एक पेयर के रूप में यूज की जाती तो उसको आइम्बिक बोलते हैं। स्लेवल होती है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, एक हाई एंड एक लो स्लेवल होती है, मात्राएं होती हैं। ऐसे ही पेंटामीटर में एक लाइन में 10 मात्राएं होती हैं जिसमें 5 जोड़े मीन्स 5 फीट होती है। एक फीट में 2 मात्राएं होंगी, एक हाई लेवल और एक लो लेवल के रूप में, एक हाई और एक डाउन लेवल के रूप में। तो इस तरीके से पेंटामीटर और आइम्बिक का यूज किया जाता है। बहुत से राइटर अपनी पोएम्स में फ्री वर्स के रूप में, जिसमें कोई भी आइम्बिक पेंटामीटर का यूज नहीं होता, ना लेवल का यूज होता लाइन्स में, सेम टू सेम सिमिलर लाइन नहीं होती हैं, लेकिन कुछ राइटर्स यूज किया करते हैं। ऐसे ही विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे महान कवि थे जो सोनेट्स लिखा करते थे, सोनेट्स में ये लोग आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया करते थे। एवरी लाइन हैज़ द पेंटामीटर वो लोग करते थे। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम द एक्सप्रेस। स्टीफन स्पेंडर्स द एक्सप्रेस ग्लोरीफाइज द एक्सप्रेस ट्रेन। अब यहाँ से आपको आलोचनात्मक विश्लेषण मिल रहा है। स्टीफन स्पेंडर की द एक्सप्रेस जो पोएम है वो एक्सप्रेस ट्रेन के महिमा मंडल को बताती है, ग्लोरीफाई करती है। द ट्रेन हियर ए सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। यहाँ ट्रेन आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का प्रतीक है। The glorious running of the train is to its destination is vividly pictured by the poet. कवि ने ट्रेन के अपने गंतव्य तक शानदार तरीके से चलने को स्पष्ट रूप में चित्रित किया है। The whistle that announces the departure of the train is described as a manifesto. ट्रेनों के प्रस्थान की घोषणा
करने वाली सीटी जो बजती है उसको एक घोषणा पत्र के रूप में वर्णित किया है। जैसे राज्यपत्र या घोषणा पत्र होता है, इसी तरह से जब प्रस्थान करती है ट्रेन तो सीटी बहुत तेज़ी से बजती है, तो इसका मतलब हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे राज्य स्तरीय जो घोषणा पत्र तैयार किया गया है उसको जारी कर दिया है। द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इज लाइक द मेजेस्टिक मूवमेंट ऑफ ए क्वीन। ट्रेन की चाल रानी की राजसी चाल की तरह प्रतीक है। द एक्सप्रेस स्पीडिंग थ्रू द ओपन कंट्री is then compared to an elegant ship on ocean। मीन्स बताया, खुले देश में तेजी से दौड़ती हुई एक्सप्रेस की तुलना समुद्र में एक सुंदर जहाज से की जाती है। द ट्रेन बिगिंस टू सिंग व्हेन इट रीचेस द ओपन कंट्री। खुले देश में पहुंचते ही ट्रेन गाना शुरू कर देती है। इट इज क्वाइट लो एट द बिगिनिंग एंड देन बिकम्स लाउडर। शुरुआत में यह काफ़ी धीमी होती है और फिर तेज हो जाती है। फाइनली इट एक्वायर्स द मैडनेस ऑफ जैज म्यूजिक। सी इज आल्सो कंपेयर्ड टू ए कॉमेट ब्लेजिंग थ्रू द स्काई। अंत में यह जैज संगीत की पागलपन को प्रकट करती है। उनकी तुलना आकाश में चमकते हुए धूमकेतु से भी की जाती है। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द ट्रेन रीचेस इट्स समिट व्हेन द पोइट सेज दैट नो नेचुरल साउंड, नॉट इवन द सॉन्ग ऑफ ए वर्ड, कैन इक्वल द म्यूजिक ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की महिमा जब चरम पर पहुंचती है, जब कवि कह रहा है कि कोई भी प्राकृतिक ध्वनि यहाँ एक किसी भी पक्ष का गाना भी ट्रेन के संगीत की बराबरी नहीं कर सकता है। Thus the poem offers a sharp contrast to traditional nature poems। इस प्रकार कविता पारंपरिक प्रकृति कविताओं के विपरीत है। Romantic poets often leave the city and find solace in the lap of nature। रोमांटिक कवि अक्सर शहर छोड़कर प्रकृति की गोद में सुकून पाते हैं। बट स्पेंडर्स पोएम मैक्स द एक्सप्रेस ट्रेन ए ट्रू रोमांटिक सब्जेक्ट। लेकिन स्पेंडर की कविता दी एक्सप्रेस ट्रेन को एक सच्चा रोमांचक और रोमांटिक विषय बनाती है। ही इज ट्राइंग टू से दैट द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मशीन्स एक्सेल्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। द रिदमिक मूवमेंट ऑफ द पोएम इंडिकेट्स द मैजेस्टिक जर्नी ऑफ द ट्रेन। वह यह कहना चाह रहा है कि मशीनों की दुनिया की सुंदरता प्रकृति की सुंदरता से बढ़कर है। कविता की लयबद्ध गति ट्रेन की राजसी यात्रा को इंगित करती है। ये जो पोएम है दी एक्सप्रेस की डिटेल स्टडी विद एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपको नेक्स्ट सीरीज में मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।